Good morning, all of you. Welcome in this first session. And all of you know that today is 15th April. And on this day, we will try to know the features of Google Drive. What is the importance of Google Drive? What are the features of Google Drive? And how this drive can be used in our day-to-day work. See, generally what happens, the students, the teachers, and other professionals, most of them, they have their digital data in the form of assignments, in the form of lesson plans, in the form of study material. And whatever work we do, we have some kind of data with us. And this data is very important. ये जो data हमारा होता है, जो हम फाइल बनाते हैं, डिजिटल फाइल बनाते हैं, गूगल डॉक्यूमेंट्स में बनाते हैं, this data is very important. But sometimes it happens due to some kind of technical glitch, some kind of technical problem. Our device, भले ही वो mobile हो, whether it is mobile or our laptop or our PC, due to some virus issues, due to some technical glitch, our file is corrupted. जो फाइल हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपने डेटा की, समटाइम्स इट इज करप्टेड, वो खराब हो जाती है, एंड वी लूज द डेटा, और हम लूज कर जाते हैं डेटा को. नॉर्मली व्हाट वी डू, वी कीप अवर डेटा इन पेन ड्राइव. हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, वी कीप अवर फाइल्स, डिजिटल फाइल्स इन अवर पेन ड्राइव. बट इवन पेन ड्राइव इज not safe to keep data. For temporary arrangement, for a printout, we can transfer our data to pen drive and it's okay. But it has limited use. Even pen drive can be corrupted. For example, if you are using your pen drive in unknown computer, कोई ऑफिस के कंप्यूटर में, कोई साइबर कैफे के कंप्यूटर में अगर हम पेन ड्राइव यूज कर रहे हैं, और वहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा वायरस है, वहाँ पे एंटीवायरस नहीं लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा वायरस है, तो व्हाट विल हैपन, योर पेन ड्राइव विल बी करप्टेड. पूरा डेटा उसका उड़ जाएगा एंड यू विल लूज द डेटा. सो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप योर डेटा सेफ? कौन सा ऐसा वे है, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आपका डेटा एकदम सेफ रह सकता है? एंड this is the topic of today's session. It is Google Drive, where your data can be saved and you can access the data anytime without any difficulty. I am sharing the screen now so that I can give hands-on training to you, a kind of idea that what exactly is Google Drive and what are the important features of it. I'm sharing the screen. Is it visible? The screen is visible or not? I hope the screen is visible to you. This is the screen. You know very well, it is Google search. See, whenever you are doing any work related to your assignments, your lesson plans, or related to your work, so what you have to do? You have to keep your data in Google Drive. Where is Google Drive? On this page, if you will see the Google search page, on the right hand side, where you can see the icon, your email icon, just behind, just in the left side, you have some dots of all the apps, you know very well. And here you will find Google Drive.
This is Google Drive, the icon of Google Drive. Just click it. I am clicking it. This is my email related to Department of English. And here you will find that with this email, all the apps, Google Workspace is there. So this Google Drive is the drive of Department of English. So whatever I do in my department, all the activities related to teaching and learning, the data, जो भी डेटा होता है मेरा डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का, जो पूरा डेटा होता है, चाहे वो एक्टिविटीज का हो, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड हो, यूनिट टेस्ट से रिलेटेड हो, असाइनमेंट से रिलेटेड हो, एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, एनीथिंग, all the data which is related to Department of English, it is in my drive. अब सबसे पहले इसके फीचर्स देखते हैं। ये जो आपको स्क्रीन पर गूगल ड्राइव का दिख रहा है, ये गूगल ड्राइव है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए, ये इसका आइकॉन है। दिस इज द आइकॉन ऑफ गूगल ड्राइव। सो what are the features here? We will first of all, we will try to know the features. First of all, this one, my drive is the drive which is attached with your email. For example, अगर आप अपने प्रोफेशन का कोई काम कर रहे हैं, जैसे एज अ स्टूडेंट आप असाइनमेंट्स का काम कर रहे हो, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का काम कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई का काम अपना कर रहे हो, तो यू शुड हैव ईमेल आईडी। ऐसा ईमेल आईडी आपके पास चाहिए जिसमें ये पूरे असाइनमेंट्स हो उसके ड्राइव में। सो दिस इज योर ड्राइव, दिस इज माय ड्राइव। देन देयर आर कंप्यूटर्स को अगर क्लिक करेंगे तो विल फाइंड कि जो भी डेटा है आपका किसी भी प्रकार का, वो सब यहाँ पर रहेगा। देन ये जो अगला फीचर है, ऐसी फाइल्स है ये इस पोर्शन में, शेयर्ड विद मी, मतलब मेरे से किसी ने शेयर किया है। फॉर एग्जाम्पल दैट इन अवर डिपार्टमेंट वी हैव 2 more टीचर्स, 2 और टीचर्स हमारे डिपार्टमेंट में हैं। अगर उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड, इफ दे हैव डन एनी वर्क, जैसे वो यूनिट टेस्ट का कुछ गूगल फॉर्म्स बनाते हैं, स्टडी मटेरियल बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, और वो अगर उनको शेयर करना है मेरे साथ, तो दे शेयर विद मी। कैसे शेयर करते हैं मैं बताऊंगा। तो उनका बनाई हुई चीज अगर वो मुझे शेयर करना चाहते हैं अपने क्लास की, तो जितनी भी फाइल्स उन्होंने शेयर की, ये शेयर्ड विद मी आइकॉन में, ये हिस्से में वो फाइल्स रहती है। दोनों टीचर्स हैं, दोनों ये फाइल्स उन्होंने शेयर की थी, और ये शेयर की हुई फाइल्स सब इसमें, इस पोर्शन में। देयर इज वन आइकॉन फीचर अबाउट रिसेंट। अगर आप कोई चीज पर काम कर रहे हो और थोड़ी देर पहले आपने काम किया, थोड़ी देर पहले या 1-2 दिन पहले, तो ऑल द फाइल्स जो कि अभी प्रेजेंट में आप जिस पर काम कर रहे हो या जिस पर आपने काम किया है या चल रहा है आपका, तो वो ये रिसेंट वाले आइकॉन को जैसे क्लिक करेंगे तो ये फाइल्स आ जाएगी जिस पर आपने रिसेंटली काम किया है। फॉर एग्जांपल मैं ये सर्टिफिकेट कोर्स का एक सर्टिफिकेट अभी बना रहा हूँ, जो कि आप लोगों को कंप्लीट होने के बाद देना है। तो आई वॉज वर्किंग ऑन इट। तो जैसे ही मैंने रिसेंट शेयर्ड का, तो आपको पता ही है, जैसे मैंने रिसेंट को क्लिक किया तो यू विल फाइंड दिस फाइल, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं इस पे काम कर रहा था, तो ये फाइल यहाँ पर मेरे सामने फिर से आ जाती है। स्टार्ट का आपको पता है कि जो इम्पोर्टेंट फाइल से वो स्टार्ट हो जाती है।
कई फाइल्स ऐसी होती विच यू हैव टू रिमूव, उसको ट्रैश कहते हैं, डिलीट करना कहते हैं। कोई फाइल ऐसी होती जो डबल हो जाती, डुप्लीकेट फाइल्स बन जाती है। सम फाइल्स यू डोंट नीड, ऐसा लगता है कि उसका नीड की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है वो फाइल की, तो यू कैन डिलीट, यू कैन रिमूव फ्रॉम योर ड्राइव। आप उस ड्राइव से, अपने ड्राइव से वो फाइल को रिमूव कर सकते हैं। सो दीज आर द फीचर्स। और इसमें स्टोरेज जो है, ईमेल, हमें हर ईमेल, एवरी सिंगल ईमेल, जैसे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का ये ईमेल बनाया है, तो इसके डिवाइस, इसके ड्राइव का और ईमेल का स्टोरेज मुझे कितना मिल रहा है फ्री में? 15 GB मिल रहा है। इट इज मोर देन इनफ। अगर हमारा छोटा सा डिपार्टमेंट है और कम प्रेशर है स्टूडेंट्स का, संख्या कम है, तो 15 GB का ये जो डेटा होता है, जो ईमेल हमें देता है, इट इज मोर देन इनफ। तो अभी तक देखो, इसमें 2 साल से मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग फ्रॉम लास्ट 2 years। तो इसमें 4.8 GB डेटा ही यूज हुआ है, जबकि मैंने बहुत काम किया है इस पर, इसमें, और इसमें डेटा भी काफी है। सो विद एवरी ईमेल, जितना भी आप ईमेल बनाओगे, हर सिंगल ईमेल में, ड्राइव में मिलाकर आपको 15 GB आपको स्टोरेज मिलेगा। सो दीज आर द नॉर्मल फीचर्स। माई ड्राइव आपका ड्राइव हुआ, कंप्यूटर्स जिससे आप सिंच कर रहे हो, जिससे डेटा ले रहे हो, शेयर्ड विद मी, जो कि आपको फाइल्स, जो स्टूडेंट्स या टीचर शेयर कर रहे हैं, वो फाइल्स इसमें डेटा रहेगा। रिसेंट में वो फाइल्स होगी क्लिक करने पर जिस पर आप काम कर रहे थे, स्टार में जो इम्पोर्टेंट है। ट्रैश वो होगा जिसमें आपने डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है अपने ड्राइव से। और स्टोरेज आपको दिखाई देगा कि इतना स्टोरेज है, और 15 GB होने के बाद आपको खरीदना पड़ेगा वो स्टोरेज। मीन्स 15 GB इज द लिमिट। नाउ हाउ कैन वी यूज? अब सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट थिंग है, that as a student, as a teacher और as a professional, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने ड्राइव को? फॉर एग्जाम्पल यू हैव प्रिपेयर्ड वन असाइनमेंट इन गूगल डॉक्यूमेंट्स, या वर्ड फाइल में आपने अपने डेस्कटॉप पर, अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर या डाउनलोड्स में, आपके पास में डॉक्यूमेंट्स में एक फाइल है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक केयर। अब इसमें क्या केयर करना होगा कि वो आपकी सेफ रहना चाहिए, फाइल खराब नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर खराब हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, मोबाइल खराब हो गया, तो ऐसा नहीं कि आपके पास से डेटा भी आपका खराब हो जाए और आप लूज कर जाओ, फिर से मेहनत करना पड़े आपको। सो वी हैव मेनी फीचर्स। ये जो न्यू है, यहाँ पर ऑन द लेफ्ट साइड एक प्लस का साइन है और न्यू है यहाँ पर लिखा हुआ। ये न्यू को जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड न्यू फोल्डर हियर। अब न्यू फोल्डर आप इसमें बना सकते हो, जिसमें आप एक तरीके का मैटर ऐड कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो। अगर आपके डेस्कटॉप पर, नॉर्मली व्हाट हैपेंस व्हेन वी वर्क, जब हम डॉक्यूमेंट्स पे वर्क करते हैं या किसी वर्ड फाइल में काम करते हैं, तो वो डेस्कटॉप पर हम सेव कर देते हैं, जो कि डैशबोर्ड जैसा होता है अपने कंप्यूटर का। जैसे शुरू करते हैं तो वो हमें डेस्कटॉप दिखाई देता है। कई बार हमारे पास फोल्डर भी होते हैं, जो कि हम एक ही तरीके का, जैसे एक क्लास में मैंने 3-4 एक्टिविटीज ली, तो मैं एक फोल्डर उसका बना देता हूँ, जिसमें वो 3-4 एक्टिविटीज के डिटेल्स होते हैं, फाइल्स होती हैं। तो ये फोल्डर हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये फाइल आपकी तैयार हुई, तो आपको क्या करना है, फाइल को अपलोड करना है अपने ड्राइव पर। कैसे करेंगे मैं बताऊंगा। द फाइल इज इन योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल में, डॉक्स में है। तो आपको क्या करना है, ये न्यू को क्लिक करना है। और अगर वो एक सिंगल फाइल है, अगर सिर्फ एक ओनली वन फाइल, सिर्फ एक फाइल है,
तो क्या करना है आपको, फाइल अपलोड का को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, व्हेन यू विल क्लिक इट, तो कहाँ से वो अपलोड करना है वो ओपन होगा। ये ओपन हो गया आपको, आई होप यू कैन सी नाउ। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो ओपन हुआ है पूरा, हमारे जितना भी डेटा है कंप्यूटर पे वो ओपन हुआ है। और डेस्कटॉप मैंने जैसे बताया था कि डेस्कटॉप पर अक्सर हम सेव करते हैं, तो डेस्कटॉप को आपको, जो फाइल आपकी है वो डेस्कटॉप पर अगर है तो उसको डेस्कटॉप को आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यू विल फाइंड मैनी फाइल्स हियर, यहाँ पे बहुत सारी आपको फाइल्स दिखाई देगी। फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है कि ये वाली जो फाइल है, सर्टिफिकेट कोर्स इन डिजिटल स्किल्स, ये वाली फाइल जो मेरे डेस्कटॉप पर है, कंप्यूटर खराब होने के कारण या फाइल करप्ट होने के कारण या कोई टेक्निकल ग्लिच के कारण ये मैं डेटा लूज नहीं करूं, तो क्या करूंगा, मैं इसको लेफ्ट माउस के लेफ्ट साइड से डबल क्लिक करूंगा। व्हेन आई विल डबल क्लिक इट, व्हाट हैपन्स, सी इन द राइट साइड क्या लिखा है, वन अपलोड कंप्लीट। अगर ये छोटी सी फाइल है, मतलब बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बहुत हेवी फाइल नहीं है, तो ये फट से हो जाएगा विद इन सेकेंड्स। जैसे देखो ये कैसे विद इन सेकेंड्स हो गया ये फाइल। क्या लिखा है, वन अपलोड कंप्लीट, और ये ग्रीन का इसमें राइट मार्क है। ग्रीन का राइट मार्क करके इसका व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट द फाइल इज अपलोडेड। अब नेचुरली ये फाइल जो अपलोडेड है आपको दिखाई देगी। इसको हम क्रॉस करेंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे, और हमें देखना है कि वो फाइल हमारी जो अभी अपलोड हमने की वो कहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिसेंट में आएंगे, लेफ्ट साइड में आओ, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, रिसेंट को क्लिक करेंगे। और रिसेंट को जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखो हमारे पास फाइल आ गई है, जो कि हमने एक सिंगल फाइल, व्हेन यू आर अपलोडिंग अ फाइल, तो सिर्फ एक फाइल एक टाइम पर अपलोड होगी। अब ये फाइल की तो मुझे जरूरत नहीं थी अभी, जस्ट फॉर इन्फॉर्मिंग यू मैंने ये प्रोसेस किया। तो मैं इसे क्या करूंगा, ये फाइल के इधर 3 डॉट्स हैं, और 3 डॉट्स में ये मुझे फाइल की जरूरत नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, सबसे नीचे के हिस्से में रिमूव का एक ऑप्शन है। रिमूव का मतलब डिलीट करना, हटा देना, ट्रैश में ले जाना। तो उसको मैं रिमूव कर दूंगा, मुझे जरूरत नहीं थी ये फाइल की, तो वो अपने आप रिमूव हो गई फाइल। और मैसेज आ गया, देखो लेफ्ट साइड में सबसे नीचे लिखा हुआ है, फाइल रिमूव्ड इन ट्रैश, ट्रैश में चले गई है, डस्टबिन में चले गई है फाइल। सो व्हाट वी हैव डन, ये जो न्यू प्लस जो का साइन था उसको क्लिक किया हमने, फाइल को अपलोड का क्लिक किया, देन हमारा कंप्यूटर का डेटा ओपन होगा। डेटा ओपन हुआ, डाउनलोड्स में मेरी अगर फॉर एग्जांपल फाइल है कोई, मुझे लगता है कि ये फाइल है, फॉर एग्जांपल ये फाइल है, मुझे लगता है डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप में है, या कहीं और है, ये सब इसमें कहीं भी वो फाइल है, तो मैं उसको डबल क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड से, और राइट साइड में देखो वन अपलोड कंप्लीट लिखा है, मतलब एक छोटी सी फाइल है जो कि अपलोड हो गई है। मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो क्लोज हम कर लेंगे, तो ये फाइल यहाँ पे रहेगी। बट नाउ आई डोंट नीड दिस फाइल, सो आई विल रिमूव फ्रॉम माई ड्राइव। ये तो ऐड करना और रिमूव करना आ गया, ये तो एक सिंगल फाइल का है। फॉर एग्जाम्पल उसका जो दूसरा फीचर है, इट इज फोल्डर अपलोड। ये फोल्डर अपलोड है। फोल्डर का मतलब होता है कि एक ऐसी फाइल जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इसको क्लिक करते हैं फोल्डर अपलोड को,
जैसे ही मैंने फोल्डर अपलोड किया, नेचुरली ये डेटा ओपन हो गया। डेस्कटॉप में आप देखेंगे बहुत सारे फोल्डर्स हैं यहाँ पर, और बहुत सारे फोल्डर्स में जैसे टीचर्स डे पिक्स है, इसमें बहुत सारे फोटोज हैं, सिलेबस है, अलग अलग क्लास का सिलेबस है, और ये ऑनलाइन जो एक्टिविटीज है उसके बहुत सारे डिटेल्स हैं, लैंग्वेज स्किल्स से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। सो आई विल डबल क्लिक इट। जैसे ही मैं डबल क्लिक करूंगा तो फाइल तैयार होगी अपलोड करने होने के लिए। डबल क्लिक मैंने किया, लैंग्वेज स्किल्स का मुझे फोल्डर अपलोड करना है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और यहाँ पर फिर देर इज ऑप्शन ऑफ अपलोड। यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन है, इसको हमें क्या करना है, पहले मैं बैक करता हूँ। लैंग्वेज स्किल्स का हमें फोल्डर अपलोड करना है, इसमें बहुत सारा मेरा डेटा है, अलग अलग फाइल से, एक से ज्यादा फाइल से। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, डबल क्लिक करते से ही यहाँ पे फोल्डर का नाम आ जाएगा, और यहाँ पर दिस इज अपलोड सेक्शन। मैं अपलोड को क्लिक करूंगा, तो अपलोड को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो वहां पर लिख के आएगा, ऊपर की तरफ देखो लिख कर आ रहा है अपलोड 4 फाइल्स टू दिस साइट। पूछ रहा है कि चारों फाइल आपको अपलोड करनी है, और कह रहे हैं इफ यू ट्रस्ट, ये जो फोल्डर से अगर आप ट्रस्ट करते हो कि सही है, तो क्या हम अपलोड करें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यस कहना पड़ेगा, मतलब अपलोड को क्लिक कर देना पड़ेगा। द मोमेंट यू क्लिक, अपलोड को जैसे ही हम क्लिक करेंगे, देखो राइट हैंड साइड में क्या हुआ, ये चारों जो फाइल्स थी ये अपलोड हो गई। पहले तो हमने सिंगल फाइल का, ये न्यू में जाके सिर्फ एक फाइल को अपलोड करना है, तो फाइल अपलोड का यूज करना चाहिए। और जिसमें ज्यादा है फोल्डर को अपलोड करना है, जिसमें बहुत सारी, जैसे इसमें 4 फाइल है, तो यू हैव टू क्लिक फोल्डर अपलोड। अब 4 फाइल्स इसमें अपलोड हो गई। मुझे जरूरत नहीं है, मुझे लगता है चारों में से सिर्फ 2 ही की जरूरत है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल रिमूव द फाइल्स। मैं रिमूव कर दूंगा जिसकी मुझे जरूरत नहीं है। और एक ऑप्शन है कि जो आपके पास फाइल है, आप उसकी, आपको एक और कॉपी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू मेक अ कॉपी ऑफ इट। आपको लगता है कि एक और कॉपी आपको चाहिए ड्राइव में, जो कि आपको यूज करना हो, तो आप मेक अ कॉपी, ये देखो इस पर एक आ रहा है ऑप्शन मेक अ कॉपी का, यू कैन क्लिक इट। मेक अ कॉपी करेंगे तो एक और कॉपी वहां पर उसके बाजू में सेम कॉपी तैयार हो जाएगी, सेम फाइल की, मतलब एक ही फाइल की 2 कॉपीज तैयार हो गई, अगर आपको उसकी जरूरत है तो। द अदर थिंग इज यू कैन ओपन इट, यू कैन प्रीव्यू इट। यू कैन प्रीव्यू मीन्स आप देख सकते हो कि ये फाइल कैसी है। एक फाइल मैंने स्टूडेंट्स के लिए तैयार की थी, आप देख सकते हो ये कैसी है। प्रीव्यू का मतलब कि प्रिंट करने के पहले देख लेना कि क्या ये ठीक है। ओपन विथ आप गूगल डॉक्यूमेंट्स के सहारे, गूगल डॉक्यूमेंट्स के साथ या पीडीएफ के साथ आप ये ओपन कर सकते हो। यू कैन शेयर इट, आप शेयर कर सकते हो, जैसे मैंने शेयरिंग का ऑप्शन बताया था कि कोई मेरे साथ शेयर कर सकता है, तो आप शेयर भी कर सकते हो। फाइल शेयर कैसे करना होगा, फॉर एग्जाम्पल आई हैव प्रीपेड अ फाइल, और मुझे आप लोगों को शेयर करना है। मेरा ये फाइल किसमें, गूगल ड्राइव में, मेरा जो फाइल है वो गूगल ड्राइव में है। मुझे लगता है मुझे किसी और को शेयर करना है, जैसे मेरे डिपार्टमेंट के दूसरे टीचर को। तो व्हाट आई विल डू, मुझे यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इधर तीनों डॉट्स को, ये जो फाइल है मेरा ड्राइव में, इसको क्लिक करना पड़ेगा, और ये जैसे क्लिक करेंगे लेफ्ट में तो ये शेयर का लिंक आएगा। शेयर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस ढंग का एक पेज ओपन होगा।
ऐड पीपल जहां पे लिखा है, यहां पर आपको उस व्यक्ति का मेंशन करना पड़ेगा जिसको आप ये फाइल भेजना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा दूसरा ईमेल है या मेरे फ्रेंड का ईमेल अगर मैं कहता हूं, तो ये अगर मैं क्लिक करता हूं तो नेचुरली ये फाइल क्या होगी, इस वाले ईमेल पर, NAAC RMPC के मेल पर चल जाएगी। स्टूडेंट के लिए अगर कोई मैसेज मुझे देना है, अगर आपको टीचर को मैसेज देना है, गूगल ड्राइव से आपने शेयर किया तो यू कैन राइट द मैसेज। अगर आपको लगता है दैट यू हैव टू गिव राइट टू चेंज द मैटर, तो उसमें अगर मैटर भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। तो उसमें एडिटर का ऑप्शन होता है। अगर एडिटर को हमने किया, सिर्फ देखने का भी ऑप्शन होता है। अगर टीचर स्टूडेंट को भेज रहा है कोई स्टडी मटेरियल तो व्यूअर का भेजेगा वो, मतलब वो फाइल सिर्फ देख सकते हैं, वो उसमें चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। एक डिपार्टमेंट का टीचर दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर को भेज रहा है तो कमेंटेटर का भी सिर्फ कमेंट करना है, दैट हाउ इज दैट पर्टिकुलर डेटा या टॉपिक कैसा है। या अगर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैं डिपार्टमेंट के टीचर्स कुछ चीज बनाते हैं और कहते हैं सर अपने हिसाब से चेंज कर लेना स्टूडेंट्स के लिए, तो वो एडिटर का मुझे ऑप्शन देते हैं इसमें, और एडिटर का जैसे ही ऑप्शन देंगे तो वो चेंजेस भी हो सकेंगे। और ऐसा करते हुए जैसे ही आप सेंड करेंगे तो ये फाइल शेयर हो जाएगी। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फीचर है इसका, फाइल शेयरिंग का। अगर आप, और ये फाइल कहाँ पे जाएगी, उनके ड्राइव में जाएगी, और कहाँ पे दिखेगी उनको, शेयर्ड विद मी में। जैसे मेरे टीचर्स ने डिपार्टमेंट के ये फाइल्स मेरे साथ शेयर की, वैसे जो मैं शेयर करूंगा वो चीजें उन्हें उसमें दिखाई देगी। सो दीज आर द बेसिक फीचर्स। ये बेसिक फीचर्स हैं, इसमें और भी कुछ चीजें हैं। we will continue in second session में हम continue करेंगे। Do you have any query? We can discuss this. I am stopping sharing here. If you have any query, you can ask me, write in the chat. हमारे पास कुछ 2-3 मिनट बाकी है। If you can ask something, you can ask me. Remember that in Google Drive, your data is always safe. You can access anywhere. आप कहीं भी, जहां भी अपना डिवाइस ले जा रहे हो, लैपटॉप ले जा रहे हो, अगर आपको अपना ईमेल आईडी पता है, पासवर्ड पता है, तो आप कहीं भी जाकर अपने डेटा को एक्सेस कर सकते हो। वो कभी भी खराब नहीं होगा, कभी भी खोएगा नहीं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट app in Google Workspace, and it is mostly used by the students, teachers, and professionals. So I think there is no question. We will meet at 10 in the next session. We will meet at 10 o'clock. Till then, take a break and reflect on the things which I have informed you. Thank you very much for this session 1.